नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 8वीं के अंग्रेजी विषय का अगला पाठ है 4.5 फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्व भारत के जो त्यौहार हैं वो इससे संबंधित इस पाठ में जानकारी दी गई है, उसमें चर्चा की गई है। पाठ की शुरुआत वार्मिंग अप से। इसमें ये चैट है कि चैट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। Do you like a celebrate festival? Why do you enjoy fair and festivals? What are the different festivals celebrated in our state? Do you know festivals which are celebrated in our other states? What is the relation between season and festival? Do you like to celebrate festival? Yes, I like every festival celebrated in Maharashtra. Why do you enjoy fair and festivals? I enjoy fair and festivals because they are all fun and merrymaking. We wear new dresses and eat sweets, buy things we like and meet friends and relatives. What are the different festivals celebrated in our state? हमारे राज्य में मनाए जाने वाले विभिन्न त्यौहार कौन कौन से हैं? The festivals celebrated in our state are दिवाली, गणेश चतुर्थी, दशहरा, होली, संक्रांति, गुड़ी पाड़वा, रमजान, ईद, क्रिसमस, etc. Do you know फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट? क्या तुम्हें अन्य राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहारों की जानकारी है? आई नो सम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट। दे आर वैशाखी इन पंजाब, पोंगल इन तमिलनाडु, ओनम इन केरला, दुर्गा पूजा इन बंगाल, रथ यात्रा इन उड़ीसा, छठ पूजा इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। फिफ्थ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीजन एंड फेस्टिवल? ऋतुओं और त्योहारों के बीच कौन सा संबंध है? Most of the festivals are related with harvesting and sowing season and based on the agricultural activities of the farmer of the states. Read the name of the festival celebrated in our country. Discuss in your groups and write down why they are celebrated. यहाँ पे कुछ त्यौहार दिए गए हैं, उनको नाम दिए गए हैं, वो त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं हमारे देश में। ग्रुप में डिस्कशन करो और वो क्यों मनाए जाते हैं उसके बारे में लिखो। दिवाली, होली, रमजान, दशहरा, क्रिसमस, मकर संक्रांति और पोंगल। Diwali, it marks Lord Krishna's triumph over Narkasur. People worship Lakshmi, the goddess of wealth, for future prosperity. Holi, it is a spring festival held on full moon day of Falgun in March or April. It signifies the victory of good over evil. It also related to the great devotee Prahlad to worshipper. He worshipped Lord Vishnu. People celebrate Dhulwad, second day of Holi, Rang Panchami, for fun and frolic. Ramzan, it is the holy month for Muslim. The festival Eid ul Fitr is celebrated after fasting the whole month of Ramzan. Dussehra, the festival is celebrated in the memory of Lord Ram's victory over Ravan. It signifies the victory of good over evil. Christmas, this festival is celebrated on 25th December as of the birth of Lord Jesus Christ. It is related with family, reunion and merrymaking. 6th Pongal is celebrated in Tamil Nadu in the beginning of the harvesting season. Write down any 5 features that are common to all festivals celebrated. Safeguarding cultural heritage, expressing religious sentiments, music, dance is most of the festivals, enjoyment, good dresses and food, meeting friends and relatives. Question number 3, frame word related to the following topics as per instruction. Festival related verb और म्यूजिक रिलेटेड एडजेक्टिव्स, डांस रिलेटेड नाउन्स। अब यहाँ पे फेस्टिवल से रिलेटेड देना है रिलेटेड वर्ब्स, डेकोरेट, इंजॉय, सेलिब्रेट, सिंग, डांस। रिलेटेड एडजेक्टिव म्यूजिक से सॉफ्ट, लाउड, सूदिंग, क्लासिकल, पॉप। रिलेटेड नाउन स्टेप्स, रिदम्स, ट्रूप, फॉर्म,
कस्टम्स डांस। अब हम आते हैं मुख्य पाठ की तरफ। फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूर्व उत्तर भारत के त्यौहार। रीड अबाउट हाउ डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इस पाठ में हम भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में विविध त्यौहार किस प्रकार मनाए जाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया consisting of 7 states in the place of diverse culture, the different communities and tribes celebrate their unique festival with great enthusiasm. Enjoy many of their festivals are based on agriculture and no celebration is complete without the traditional music and dance. इसको अगर हम हिंदी में कहें तो 7 राज्यों से मिलकर बना भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र विविध संस्कृतियों से परिपूर्ण है। भिन्न जातियों एवं जनजातियों के लोग अपने अपने विशिष्ट त्यौहार अति उत्साह के साथ आनंदपूर्वक मनाते हैं। उनके अधिकांश त्यौहार कृषि पर आधारित हैं। उनका कोई भी उत्सव परंपरागत संगीत तथा नृत्य के बिना संपन्न नहीं होता। ब्लेस्ड विथ लस ग्रीनरी and the mighty river Brahmaputra, the people of Assam have a lot to celebrate. So Bihu is the chief festival of this state. It is celebrated by people of all regions, castes or tribes. The 3 different sets of Bihu mark the beginning of the harvesting season, the completion of sowing and the end of harvest season. हिंदी में भी हम बता दें, भरपूर हरियाली और विस्तृत ब्रह्मपुत्र नदी के जल से समृद्ध असम के लोग विविध प्रकार के त्यौहार तथा उत्सव मनाते हैं। बिहू इस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सभी धर्मों, जातियों तथा जनजातियों को लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। बिहू त्यौहार 3 चरणों में मनाया जाता है। पहला फसल की ऋतु प्रारंभ होने पर, दूसरा बीजों की बुआई पूरी होने पर और तीसरा फसल की ऋतु समाप्त होने पर। द बिहू डांस is a joyous and performed by the both young men and women and is noted for its brisk step and hand movement. Unusual instrument provide traditional music for the dance. The dhol, which is similar to a drum, the pipa, a wind instrument made from a buffalo horn, cymbals and bamboo clapper. The song have been handed down through many generations. Bihu competition held all over Assam attract visitor and local alike in large numbers. बिहू एक आनंददायी नृत्य प्रकार है जिसमें युवा, पुरुष और स्त्रियां सम्मिलित होते हैं। फुर्तीली नृत्य मुद्राएं एवं हाथों की चाल इस नृत्य की विशेषता है। असामान्य वाद्यों यंत्रों ने इस नृत्य के लिए संगीत निर्मित किया है, जैसे ड्रम से मिलता जुलता ढोल, भैंस की सींग से बना वायुवाद्य, पेपा, झांझ और बांस का टुनटुना। नृत्य के साथ गाए जाने वाले बिहू गीत कई पीढ़ियों से हस्तांतरित होते आ रहे हैं। असम में आयोजित होने वाली बिहू प्रतियोगिता बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और सैलानियों को आकर्षित करती हैं। लिविंग फर्दर नॉर्थ इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयाज, अरुणाचल प्रदेश फाइंड मेंशन इन एंशियंट लिटरेचर ऑफ पुराणास एंड महाभारत. Nature has provided the people of this region with a deep feeling for beauty, which can be seen in their festivities, song and dances. उत्तर में हिमालय की पर्वत श्रेणियों में बसे अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख पुराणों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। प्रकृति ने इस प्रदेश के लोगों को सौंदर्य के प्रति विशेष अनुभूति प्रदान की है, जिसकी झलक उनके त्योहारों, गीतों और नृत्यों में दिखाई देती है। आगे पैराग्राफ में हम देखते हैं, द न्यू ईयर फेस्टिवल कॉल्ड लोसर इज परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन सर्टेन एरिया ऑफ अरुणाचल. On the occasion, people clean out their homes to bring in the new year and to discard the old. लोसर भारत नव वर्ष की स्वागत का त्यौहार है। यह संभवतः अरुणाचल के अधिकांश क्षेत्रों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस अवसर पर लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और पुरानी चीज़ों को त्याग कर नव वर्ष का स्वागत करते हैं।
द चार्मिंग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर निंगोल चकौबा binds and revives the relationship between married girls and their parents. The women and their children are given an sumptuous feast and gift during Cheroba, the Manipur New Year festival in April. People clean and decorate their houses and prepare special festive dishes as part of the ritual. The villagers climb the nearest hilltop, for they believe that this will help them rise to a higher plane in this life. मणिपुर का यह एक अनोखा त्यौहार है निकोल चाकोबा। यह विवाहित स्त्रियों को उनकी माता पिता से जोड़ता है और उनके आपसी संबंधों में नवचेतना का निर्माण करता है। स्त्रियों और उनके बच्चों को भोज कराया जाता है, उपहार दिया जाता है। मणिपुर में अप्रैल के महीने में नववर्ष का त्यौहार शिरोबा मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान लोग अपने घरों की साफ सफाई करके उसे सजाते हैं और विशेष पकवान तैयार करते हैं। एक पुरानी प्रथा का पालन करते हुए गांव के लोग निकट के पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उन्हें जीवन में ऊंचा स्थान, उच्चतम सफलता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ चैपचर Cut is an important occasion mostly celebrated in Mizoram. Men and women of all ages wearing traditional dresses and headgear perform folk dance and sing traditional song on this occasion. Drum, gongs and cymbals add to the festive air. बसंतोत्सव अथवा चपचार कूट मुख्यतः मिजोरम में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण उत्सव है। इस अवसर पर सभी आयु वर्ग की पुरुष तथा स्त्रियां पारंपरिक परिधान और सिरमौर पंखों से बनी विशिष्ट टोपी धारण करके लोक नृत्य करते हैं तथा पारंपरिक गीत गाते हैं। ढोल, घंटों तथा झांझ का शोर त्यौहार के उत्साह को और अधिक बढ़ाता है। वांगला और द 100 ड्रम फेस्टिवल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द गारोज इन द विलेज ऑफ मेघालय. दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल is celebrated the mark to end of the period of hard work, which naturally bring a good harvest. The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and other of women, clad in their festive customs. While the men beat the drum, the line of dancers move forward together in the rhythmic manner. बांग्ला अथवा सत ढोल उत्सव मेघालय के गाँव में गारो लोगों द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। कठोर परिश्रम के फलस्वरूप उत्पन्न अच्छी फसल की खुशी में यह उत्सव मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष इस त्यौहार के लिए विशेष परिधान पहनते हैं। दो समांतर रेखाओं में एक और स्त्री और एक और पुरुष नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। जब पुरुष ढोल बजाते हैं, नर्तकों की कतारें लयबद्ध शैली में एक साथ आगे बढ़ती हैं। The main features of festival in Tripura is that all the people join the celebration. Many of the dances performed during some of the festivities represent hunting, fishing, food gathering and various other activities. Some of the festival attract people from all over India. त्रिपुरा के त्योहारों की प्रमुख विशेषता है कि सभी लोगों का उससे एक साथ सम्मिलित होना, उत्सव में प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्यों में शिकार करना, मछली पकड़ना, भोजन एकत्र करना जैसी विविध क्रियाकलापों का चित्रण होता है। इनमें से कुछ उत्सवों को देखने के लिए संपूर्ण भारत के लोग यहाँ आते हैं। नागालैंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर यूनिक इन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड द फेस्टिविटीज दे सेलिब्रेट सॉन्ग एंड डांसेस फ्रॉम सोल ऑफ दिस फेस्टिवल्स थ्रू विच देयर ओरल हिस्ट्री एंड इज पास्ड डाउन. अ मेजर फेस्टिवल इज Mostu, celebrated mainly in the village after the sowing, decorated with feathers and wild boar tusk. The villagers dance to traditional music. नागालैंड में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। उनकी रीति रिवाज, परंपराएं और त्यौहार अपने आप में अद्वितीय हैं। नृत्य और गीत इन उत्सवों की आत्मा है, जिनके माध्यम से उनका मौखिक इतिहास आगे की पीढ़ियों तक पहुंचता है। बीजों की बुआई के बाद मुख्यतः गांव में मनाया जाने वाला यह प्रमुख त्यौहार मोस्तु
रंगीन परिधानों तथा पंखों और जंगली सूअरों के दांतों से सजाए गए सिरमौर को पहनकर गांव वाले पारंपरिक संगीत पर नृत्य करते हैं। हार्डली a month passes in any of 7 states without a festival or two. Most of them have a religion without religious importance or significance, as the people offer thanks to God for good harvest and prosperity or ask for protection against calamities. But these celebrations also help to encourage cultural and artistic activities and bring out the natural talent of the people. 7 राज्यों में किसी न किसी में प्रत्येक महीने में एक या दो त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। इसमें से अधिकांश त्योहारों का धार्मिक महत्व है, क्योंकि इनके माध्यम से लोग अच्छी फसल से प्राप्त समृद्धि के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा की कामना करते हैं। इसके अतिरिक्त इन उत्सवों से सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है और लोगों को अपनी नैसर्गिक प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। धन्यवाद।